So once again, good morning, friends. We are discussing about the statistical parameters in concrete mix design. We have last time seen these are the various methods of the concrete mix design, or the methods of mix mix proportioning. It is also called as. Okay, these are the various methods we have discussed last time. Arbitrary methods to Indian standard, a recommended method of 10-62 2009. I'll be posting definitely the Indian standard on your group, third same group, as well as on the Google class also. Okay, immediately after the class, I will be requesting you to go through the Indian standard if possible, or else you can understand the things from your notes. But be prepared with the notes next time. We have, I have told you that what is the importance of the statistical parameters to be considered while finalizing the strength of the concrete which we will be designed, और whose mix we will be designed. ओके, हम क्या करने वाले हैं, अभी कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है, जैसे ये मीन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वेरिएंस है. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो आपको मालूम है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये हम आज कैसे वर्कआउट करते हैं वो समझ लेंगे. और मैंने अभी बताया वैसे क्यों करते हैं हम, व्हाई, because the characteristic strength is being given by the structural engineer, but we want to find out the strength. That strength is called as the target mean strength. So that strength for which the concrete is to be designed, mixed, for which the concrete mix is to be designed, that target mean strength, how to find out, and what are the various स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो हम समझने का ट्राई करेंगे. क्या है भाई ये, व्हाट इज द एम ऑफ द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और द अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिकल पैरामीटर इज टू लिमिट द वेरिएबिलिटी एज मच एज प्रैक्टिकेबल. वेरिएबिलिटी यानी मैंने बताया कि हम जो लेबोरेटरी में कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे, है ना, मिक्स डिजाइन करेंगे यानी आप समझ लीजिए कि एखादे स्ट्रेंथ के लिए मैं कुछ फिक्स कर डालूंगा कि इतना सीमेंट यूज कीजिए, इतनी गिट्टी, इतनी रेती, इतना पानी और इतना एडमिक्सचर यूज कीजिए. तो लेबोरेटरी में तो आइडियल कंडीशन है, लेबोरेटरी में बिल्कुल गिन गिन के डालेंगे हम बराबर और क्यूरिंग भी करेंगे. लेकिन साइट पे ऐसा नहीं होगा, तो उसमें कुछ तो भी वेरिएशन होगा. दैट वेरिएशन इज कॉल्ड एज द वेरिएबिलिटी. तो the aim of this statistical relation or statistical study is to find out that variability, that some constant which will consider the variations in site as well as in laboratory. ठीक है, यानी प्रैक्टिकल करते वक्त या साइट पे क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी आएगी कि कम आएगी, तो उसके लिए कुछ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो हम इसमें समझने का ट्राई करेंगे. That statistical quality control methods provides a scientific approach to concrete designer, means concrete mix designer, to understand the realistic variability of materials so as to lay down design specifications with proper tolerance to cater unavoidable variations and also the quality control at site. ठीक है, यानी मटेरियल वेरिएबिलिटी, मटेरियल बदल सकता है. आपने जो मिक्स डिजाइन करते वक्त यूज किया वो कंक्रीट के काम करते वक्त दूसरा मटेरियल आएगा, और आपके साइट पे कौन से, आप कितने ध्यान से कंक्रीट करवा रहे हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल बोलेंगे. तो वो भी हमें कंसिडर करना है. Therefore, this statistical quality control method provides scientific basis of the acceptance. Okay, which is not only realistic but also restrictive as provided by the design requirements for the concrete construction. अब क्या करते हैं, अब ये पहले तो हम ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर समझ लेते हैं. ठीक है, पहले हम कुछ पैरामीटर जो है जिसको हम मीन बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे वर्कआउट करते हैं ये पहले समझ लेंगे. और उसके बाद में इसका एप्लीकेशन हम कैसे यूज करते हैं, जिसको मैंने टारगेट मीन स्ट्रेंथ करके बोला था.
यानी जिसके लिए कंक्रीट मिक्स हम डिजाइन करते हैं, काय के ऊपर से, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से। और कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी चाहिए हमें, ये कौन देता है, ये हमें देता है स्ट्रक्चरल डिजाइनर। और ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ वर्कआउट करके कंक्रीट मिक्स डिजाइन कौन करता है, तो वो जो कंक्रीट मिक्स डिजाइनर या जो लेबोरेटरी का इंजीनियर है वो। और ये दोनों के बीच में कंक्रीट एक्चुअली कौन करवा लेता है साइट के ऊपर में, वो है वो साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, 3 लोग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर डिजाइन करके तो फ्री हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल या जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करता है वो मिक्स डिजाइन करके भी फ्री हो जाता है, वो सब ये फैक्टर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन है, ये साइट इंजीनियर। उसके ऊपर में, साइट के ऊपर में मटेरियल क्वालिटी एंड द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये दोनों उसकी जवाबदारी है। ये यदि अच्छा है तो जो जो डिजाइनर, क्वालिटी कंट्रोल डिजाइनर ने जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करके दिया, उस हिसाब से साइट के ऊपर काम होगा। यदि ये इसने बताया उस हिसाब से यदि नहीं हुआ साइट के ऊपर, तो कंक्रीट के स्ट्रेंथ में डेविएशन आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। वो वेरिएशन कंसीडर करके ही ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन करता है। वो क्या है, कौन से पैरामीटर कंसीडर करता है, वो पहले हम समझ लेते हैं, और इसका एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें आज समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम ऐसा समझेंगे मित्रों कि हमारे पास में जैसे ये सैंपल्स है, all this table shows the first 2 column. The first is the serial number or the sample number. So 20 samples we have. काय के सैंपल है, तो हमारे पास में कंक्रीट क्यूब जो है, कंक्रीट क्यूब यानी एक कंक्रीट क्यूब का सेट, एक सेट में कितने क्यूब होते हैं, 3 क्यूब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 20 सेट है हमारे पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला लास्ट टाइम इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था। So 20 sets of the concrete cubes are there. These sets, 20 sets are tested in laboratory. इसकी compressive strength या crushing strength हमने laboratory में टेस्ट किया, और उसका जो हर सेट का जो एवरेज आया, उसकी compressive strength हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, जैसा पहला सेट है तो उसकी 43 मेगा पास्कल है, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो 43 है, और ऐसे ही हम लिखते गए तो ऐसे 20 सेट जो है, ये 20 सेट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया 43 to 40, ऐसा है। ठीक है ना, ऐसा हम समझेंगे कि ये जो क्यूब कास्ट किए, ये जो क्यूब कास्ट किए, ये क्यूब का साइट पे जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, साइट पे जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो स्ट्रेंथ है M40, है ना। M40 यानी 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 40 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ हमें साइट पे चाहिए कंक्रीट की। उसके हमने क्यूब कास्ट किए, और उसके क्यूब कास्ट करने के बाद में ये इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आई। ठीक है, अब देखिए, अभी सोचते जाइए थोड़ा थोड़ा कि किसी क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा भी है 40 से, किसी क्यूब की स्ट्रेंथ कम भी है। ठीक है ना, किसकी बहुत ही कम है। तो ये कम ज्यादा रहने का कारण क्या है, ज्यादा तो ठीक है, ज्यादा है इसका मतलब साइट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल एंड द मटेरियल क्वालिटी, यानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी इन स्टार्ट्स फ्रॉम बैचिंग टू द फिनिशिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वाइब्रेटिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। ये हो गया मेथोडोलॉजी, यानी ये सब साइट इंजीनियर ने अच्छे कर लिया। और उसके पहले का कौन सा है, बिफोर कंस्ट्रक्शन, मटेरियल जो भी यूज करने वाले हैं, जो सैंड है, गिट्टी है, सीमेंट है, पानी है, एडमिक्सचर है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। जो भी हमने अभी तक के पढ़ा कि मटेरियल का कौन सा टेस्ट करना चाहिए, वो सब करने के बाद में वो मटेरियल ओके है, तो फिर स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। यदि कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो स्ट्रेंथ में कम, लेस। तो हमें यही देखना है कि साइट के ऊपर में क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, वो कंसीडर करके कंक्रीट मिक्स डिजाइनर ने कौन से स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है। उसके लिए जो कोई वेरिएशन या कोई पैरामीटर स्टैटिस्टिकल लगते हैं, वो कैसे वर्कआउट करते हैं वो समझते हैं।
तो अभी बाद में ये सेकंड कॉलम तो सबके ध्यान में आ गया कि हमारे पास में क्या है कि 20 सेट है कंक्रीट क्यूब के, और उसके 20 सेट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाला सभी की, और सबकी टोटल किया तो ये 804 आई। अब इसकी एवरेज स्ट्रेंथ यदि निकाला तो कितनी आएगी, 804 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, जिसको हम मीन स्ट्रेंथ बोलेंगे या एवरेज बोलेंगे, ठीक है। ये अभी नेक्स्ट कॉलम में है। एक्स बार, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, दैट इज ऑल दीज वैल्यूज आर सम, एंड डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। आपके पास में नोट्स है तो नोट्स में लिखिए ये 40.2 कैसा है, नहीं तो नोटबुक में लिखिए, ठीक है। इट इज 104 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 सेट है अपने पास में, 20 नंबर है। अब बाद में क्या किया कि ये जो एवरेज वैल्यू आई है, ये एवरेज वैल्यू, ये जो इंडिविजुअल सेट की वैल्यू है, ये इंडिविजुअल सेट से कितनी कम या कितनी ज्यादा है, उसको हम डेविएशन बोलेंगे। कितनी डेविएट हो गई है, यानी एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज जो है ये कितने कम या कितने ज्यादा या डेविएट हुई है। इसका डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें, है ना। साइट पे जब काम करते हैं तब बहुत ज्यादा भी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ है यानी फिर सीमेंट ज्यादा है, सीमेंट ज्यादा है यानी अनइकोनॉमिकल है। और कम भी स्ट्रेंथ, कम तो चाहिए ही नहीं, कम आ रहा है जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उससे कम आ रही है, इसका मतलब है तो ये तो क्वालिटी कंट्रोल बेकार है, ठीक है। तो ठीक है, आगे में हम डेविएशन निकालते हैं, वो क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। आपके पास में यदि प्रिंटेड कॉपी है तो वहां पे लिखिए, नहीं तो नोटबुक में लिखिए कि ये 2.8 कैसे आया, तो ये 43 माइनस 40.2। तो फर्स्ट इज 43 माइनस 40.2, second is 48 minus 40.2, 7.8, थर्ड वन इज 40 minus 40.2। अब 40 लार्ज, 40 पहला है, माइनस है, तो इसलिए माइनस वैल्यू है -0.2, ठीक है। तो इन दिस वे ऑल दीज वैल्यूज आर फाउंड आउट। some values will be plus wherein all these x values are greater than the average value, some values will be minus wherein all these values, that is 38, 36, 39, 37, 35, they are smaller than this average value. Okay, I think everybody has got how these values are worked out. Don't worry for the plus value or the minus value, जो आए वो लिख दीजिए, ठीक है। मैंने बताया लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया है इस टाइप का, बी प्रिपेयर, लेकिन बहुत इजी है, हो गया ये। अब तीसरा कुछ नहीं, बिल्कुल ये कॉलम का हर एक रो की स्क्वायर किया है, ठीक है। 2.8 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। ओके, so the fourth column and the last column, or sorry, the fifth column and the last column is nothing but the square of all these values. Okay, so 7.8 स्क्वायर, जो माइनस है अभी उसका स्क्वायर किया तो वो सब वैल्यू प्लस आएगी, ठीक है। -4.4 इंटू -4.4, इट इज प्लस 16.64। ओके, ये कैसी वैल्यू आई ये आप नोटबुक में लिखिए, और ये प्लस वैल्यू आएगी, ये कभी माइनस नहीं आएगी। आपको मालूम है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस, so square values will be plus, though these values may be minus, so don't worry for the minus values, all the square values will be plus। इसकी भी सम कर डालिए 359.2। okay, I think everybody has got understood the process now। यहां तक हो गया कि ऐसे समझिए आपका 70% तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी आगे में कुछ नहीं, 2-3 फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ओनली 2 formulas are there। Understand those formulas and you can find out the value of the standard deviation and the coefficient of variation, standard deviation and coefficient of variation। ये काय के लिए चाहिए हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? ये सिर्फ बताते हैं हमें कि ये जो एवरेज स्ट्रेंथ है या जो भी हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ये क्यूब जो है, ये हमारे साइड पे कास्ट किए हुए, या हमारा क्वालिटी क्या है साइट की, ये कितनी वेरी होती है हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू से,
ये दो वैल्यू बताती है, कौन सी, जो अभी हम निकालने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये 5 कॉलम के कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत कोई कठिन है क्या? कुछ भी नहीं। सब क्रशिंग स्ट्रेंथ एक ऑर्डर में लिख दिया हमने, सबकी टोटल किया, 804 डिवाइडेड बाय 20 एवरेज आ गया। वो एवरेज स्ट्रेंथ है, इसको मीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और फिर बाद में कुछ नहीं किया, एवरी इंडिविजुअल माइनस दिस मीन स्ट्रेंथ, एक्स माइनस एक्स बार, दीज वैल्यूज, फिर इसका स्क्वायर किया, है ना, जो आई, और उसकी टोटल कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसकी थियरी भी समझ लेते क्यों कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पहले का जो टेबल है, ये स्ट्रेंथ वर्सेस दी, if the compressive strength with the number of the samples in the set, ये यदि हमने देखा तो हमारे ऐसे ध्यान में आएगा कि ये स्ट्रेंथ ऐसी वैरी होती है, या स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है वो ऐसे एक साइन्यूसाइडल ग्राफ जिसको बोलते हैं वैसे होता है। और मैक्सिमम जो वैल्यूज है, ये जो हमारी जो, और द मैक्सिमम वैल्यूज लाई ऑलमोस्ट इक्वली ऑन बोथ साइड। जो भी हमारी मीन स्ट्रेंथ है, मीन स्ट्रेंथ से ये होती है कुछ ही वैल्यू जो है वो एक तो बहुत कम आती है या कुछ वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। ये वेरिएशन हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अवर ऑल द क्यूब वैल्यूज और ऑल द क्यूब्स विच आर कास्टेड एट साइट शुड लाई विद इन द मीन वैल्यूज। इससे ज्यादा बहुत कम भी नहीं चाहिए, कम तो चाहिए ही नहीं, लेकिन और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो ऑल द स्टडी ऑफ दिस पैरामीटर shows we want these things. Okay, now we come to the last part of this, that is the first is the mean strength. इसकी थियरी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक आधे बार क्या है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो व्हाट इज द डिफाइन, व्हाट इज द मीन स्ट्रेंथ, define what is the variation or the variance, define what is standard deviation, define what is coefficient of variation. तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हम ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर क्यों निकालते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हो। अब थोड़ा आपको आगे में ध्यान में आएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन पहले तो ये टर्म समझ लीजिए। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको समझा दिया कि भाई ये काय के ऊपर डिपेंड रहता है। ये जो पैरामीटर, ये पैरामीटर डिपेंड रहते हैं मटेरियल क्वालिटी एट द साइट एज वेल एज द मेथोडोलॉजी और द कंस्ट्रक्शन मेथड्स अडॉप्टेड ऑन साइट। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इसका इम्प्लीमेंटेशन है हम जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या रहना चाहिए, उसके लिए हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और उसके लिए कुछ जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट हम यूज करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी ये जानकारी है। एक्चुअल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूं। तब पहला टर्मिनोलॉजी है मीन स्ट्रेंथ, दैट इज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब्स बाय द नंबर ऑफ क्यूब्स। जैसे हमने ये पीछे में दिए देखा कि दिस इज द एवरेज स्ट्रेंथ और द मीन स्ट्रेंथ, that is summation of all these 804 divided by 20 is the mean strength. ठीक है, so this is the mean strength, sum of the strength and n is the number of cubes. Okay, so this is mean strength. Second is variance. Variance, and as the name shows, it is the variability or the variation of the concrete cube strength from the average strength. So therefore, this is the measure of variability or the changeability, you can say, or the difference between any single observed data from the mean strength. ये जो mean strength हमने निकाली है, ये mean strength से सिंगल जो क्यूब स्ट्रेंथ है, जो 20 हमने टेबल में देखा था, तो वो 20 पैकी इंडिविजुअल ये मीन स्ट्रेंथ से कितना कम है या कितना ज्यादा है, वो जो वेरिएशन है उसको वेरायंस करके बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस इज द मेजर ऑफ द वेराइबिलिटी और द डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्व डाटा। ठीक है, इसके वेरायंस का ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरायंस है, कितनी वेराइबिलिटी है वो है,
और ये वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए दूसरा पैरामीटर है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी एक फॉर्मूला है। अगेन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड, इसका भी नाम डेविएशन है। डेविएट मीन्स दिस इज द डेविएशन वैल्यू from the mean value. How it is found out? This is the root mean square deviation of all the results. This is the root mean square of the results of the square deviation of all the results. This is denoted by S or sigma. ठीक है, standard deviation S or sigma. And the second is the formula for the standard deviation. Sigma or S is equal to ये जो हमने x माइनस एक्स बार निकाला था और उसकी सम किया सबसे नीचे में, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स n माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल दिस स्क्वायर ऑफ द डेविएशन डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n इज इक्वल टू 20 इन आवर केस। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो n माइनस 1 यानी 19 आएगा। ठीक है, बाकी तो आपके ध्यान में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग वेरिएबिलिटी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा कभी भी नहीं चाहिए, वेरिएबिलिटी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। जो भी हमारा मटेरियल क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये दोनों में समानता रहना चाहिए। इसमें बहुत डिफरेंस रहा तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, और ये यदि बढ़ेगा तो हमें फिर जो जिसके कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो करना है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी वो फिर अनइकोनॉमिकल की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा रखना यानी वाटर सीमेंट रेशो कम रखना, वाटर सीमेंट रेशो कम रखना यानी फिर हमें सीमेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या पानी कम करना पड़ेगा, और वो पानी भी कम करना ये वर्केबिलिटी के लिए। तो बहुत सारे पैरामीटर। The characteristic of a normal distribution curve are fixed by the average value and the standard deviation, वो जो कर्व हमने पहले देखा था। ठीक है, और coefficient of variation, another parameter. It is an alternative method of expressing the variation of the result. It is non-dimensional measure of the standard of the variation obtained by dividing the standard deviation by arithmetic mean and is expressed in percentage. So coefficient of variation V is equal to sigma divided by x bar into 100. देखो ये सिर्फ हमें दो ही चीजें निकालना है एग्जाम में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने टेबल में तो यहां तक के पूरा निकाला, सो वो समेशन डिवाइडेड बाय n माइनस 1 उसका स्क्वायर रूट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन आया डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। It is very simple. Okay, again I will repeat this table. We have all those 20 datas of the concrete cube sets whose we have found out the crushing or the compressive strength, its total, its average or the mean strength we have found out 40.2, deviation x minus x bar means all these values individually minus 40.2, these values इस सब का स्क्वायर किया इंडिविजुअल, ये आया, इन सब की टोटल किया तो ये 359.2 आई। इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार जो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए लगने वाला है। ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ, ये तीन चीजें एग्जाम में पूछते हैं, एवरेज स्ट्रेंथ और द मीन स्ट्रेंथ, सेकंड इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द थर्ड इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरी सिंपल। सो एवरेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 804 डिवाइडेड बाय 20, ये हमने यहाँ पे निकाला ही है 40.2। ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज नथिंग बट द x माइनस एक्स बार समेशन, यानी ये जो यहाँ पे हमने ये किया है 359.2, इसकी सब की सम। सो 359.2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n इज इक्वल टू 20, सो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, उसका स्क्वायर रूट। So 359.2 माइनस अपॉन 19, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए, ये यदि स्क्वायर रूट निकाला तो दैट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.34 मेगा पास्कल। स्टैंडर्ड डेविएशन का हरदम यूनिट रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या बताती है कि ये जो मीन वैल्यू है एवरेज, ये एवरेज वैल्यू से
हमारे जो भी 20 वैल्यूज है ये आइदर इतने कम आ रहे हैं नहीं तो ज्यादा आ रहे हैं। ये प्लस वैल्यू है ना, ये हरदम प्लस रहेगी क्योंकि सभी वैल्यूज प्लस है। तो ये दिस इज द डेविएशन, मींस द वैल्यूज आर डेविएटिंग बाय 4.34। ये डेविएशन ज्यादा नहीं चाहिए हमें फॉर द आइडियल क्वालिटी कंट्रोल एट साइट। ठीक है, यही डेविएशन परसेंटेज के माध्यम से बताता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 4.34 अपॉन 40। एवरेज स्ट्रेंथ हमने 40.2 into 100 10.8। what does this 10.8% shows? This 10.8% shows that all the values either they are varying by almost 11%, और 11% से वैल्यूज वेरी हो रहे हैं कम या ज्यादा में। इतने वेरिएशन हमें चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। और डेविएशन भी इतना, ज्यादा से ज्यादा 1 मेगा पास्कल का डेविएशन और ज्यादा से ज्यादा 2% बहुत हो गया, तो फिर साइट पे क्वालिटी कंट्रोल गुड है करके बोलेंगे। ठीक है, तो ये टिपिकल वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्लेसिंग एंड मिक्सिंग कंट्रोल। ठीक है, प्लेसिंग एंड मिक्सिंग कंट्रोल, दीज आर द वेरियस standard deviation values which are suggested by the engineers, by the certain experts। ये इन्होंने कुछ वैल्यूज दिया है। ठीक है, अभी हम इन वैल्यूज के बहुत डिटेल में नहीं जाते, तो लेकिन आपने देखा होगा कि ड्राइड एग्रीगेट कंप्लीटली एक्यूरेट ग्रेडिंग, वेल ग्रेडिंग, एग्जैक्ट वाटर सीमेंट रेशियो, कंट्रोल टेम्परेचर क्यूरिंग, यानी ऑल द क्वालिटी लैबोरेटरी प्रिसीजन यहाँ पे लिखा है। लैबोरेटरी प्रिसीजन यानी बेस्ट, लैबोरेटरी में हम पूरी केयर लेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए सिर्फ 1.3 मेगा पास्कल। वे बैचिंग है, अब ये साइट के ऊपर में, ऑल दिस कंडीशंस आर फॉर द साइट। वे बैचिंग से लेके तो कंप्लीट curing and all the aggregates etc, all the 3 types of the well graded aggregate, water proportioning means well maintained water cement ratio, weighing of the aggregates and the continuous supervision, है ना। इसके लिए excellent degree of the quality control 2.8 फिर भी, और worst quality control fair, यानी बिल्कुल वॉल्यूम बैचिंग है, बल्किंग ऑफ सैंड अलाउड कर रहे हैं, फिर भी सीमेंट का वे बैचिंग है, वाटर कंट्रोल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द मिक्स, यानी गिन के नहीं पानी डाल रहे, कंक्रीट बनाते वक्त कंक्रीट को देख के पानी डाल रहे, अरे ज्यादा कर रहे कम कर रहे। इंटरमिटेंट सुपरविजन, है ना, कोई तो भी अच्छा इंजीनियर नहीं बैठा है ईमानदारी से काम करने वाला, वो बीच में से पान खाने चाय पीने जाता है। इंटरमिटेंट सुपरविजन, तो ये इसका बेकार क्वालिटी कंट्रोल है। फेयर, तो इसके लिए उसको स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ज्यादा है ना। ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यानी जियो स्ट्रेंथ के लिए हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने वाले हैं, वो बढ़ेगी, और वो बढ़ी तो फिर कंक्रीट की इकोनॉमी नहीं रहेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, आवर एम शुड बी एज बेस्ट एज द क्वालिटी कंट्रोल एज पॉसिबल। अब हम आगे में और आखिरी पार्ट ये आज के लेक्चर का उसमें जाते हैं। मुझे लगता है फिर से मैं सबको सुनाई दे रहा है बराबर। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ, ओके, दैट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अगेन आई विल रिपीट फ्रेंड, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड और स्ट्रेंथ got or strength proposed to be got from the concrete mix design। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ यानी टारगेट नाम ही है इसका। इसका मतलब ये है कि हमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो करना है वो ये स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करना है, इसको टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलेंगे। और ये काय के लिए काय के ऊपर डिपेंड रहेगा? ये फिर से क्वालिटी कंट्रोल or the quality of the material and the quality at site, that is methodology। Keep two words always in mind, material quality control and the methodology। methodology में बिल्कुल बैचिंग, यानी वे बैचिंग है कि वॉल्यूम बैचिंग है, मिक्सिंग है,
हैंड मिक्सिंग है, मैंने मैन्युअल मिक्सिंग है कि मिक्सर से है कि रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट मिक्सर से कहा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि सादे ट्रक से लेके जा रहे हैं कि लेबर से। बाद में फिर प्लेसिंग, आप कैसे पे प्लेस कर रहे हैं, शूट से कर रहे हैं, घमेले से कर रहे हैं, पंप से कर रहे हैं। बाद में कॉम्पैक्शन, वाइब्रेशन से कर रहे हैं कि रॉडिंग से कर रहे हैं कि सरफेस वाइब्रेटर क्या है। फिनिशिंग, और बाद में क्यूरिंग। तो ये सब हो गया, तो वो उसके ऊपर ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ डिपेंड रहेंगे। एंड द सेकंड इज स्पेसिफाइड मिनिमम स्ट्रेंथ, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हु स्पेसिफाइज दिस मिनिमम स्ट्रेंथ? दिस मिनिमम स्ट्रेंथ इज बीइंग स्पेसिफाइड by the structural engineer. So structural engineer specifies the characteristic strength, and the concrete mix designer or concrete mix designing engineer decides the target mean strength. तो अब इसमें रिलेशन क्या है भाई? क्योंकि टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमें हरदम ज्यादा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों की हमें केयर लेना पड़ता है कि साइट के ऊपर में हाउ इज द क्वालिटी कंट्रोल। तो ये दो दो में रिलेशन जो है, जो जो स्टैटिस्टिशियंस लोगों ने और हमारे इंजीनियर्स ने विथ ड्यू एक्सपीरियंसेस, इट हैज बीन फाउंड आउट द रिलेशन एज द एस एवरेज। एस एवरेज इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ और द एवरेज डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एस मिनिमम प्लस के सिग्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, दैट एस एवरेज, एस इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, S minimum is the characteristic compressive strength proposed by the structural designer. S average is the concrete or the strength proposed by the concrete mix designer, plus K into sigma. These K and sigma are the two statistical parameter which depends on the material and the site quality control. Okay, so the sigma is standard deviation. We have worked out, we have found out the method how to find out the standard deviation. और एक हिम्सवर्थ करके स्टैटिस्टिशियन था, ये हिम्सवर्थ का ये के करके कांस्टेंट है, जिसके इज कॉल्ड एज द हिम्सवर्थ कांस्टेंट। ठीक है, सो द ओवरऑल रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। this is, we use the same formula or we use the same method to find out the target mean strength as per Indian standard 10/2/62 2009। अभी वो 2019 में वो रिवाइज हो गया इंडियन स्टैंडर्ड 10,262। वो भी मैं बाद में भेजूंगा, लेकिन आपको उसकी कॉपी मेरे पास में है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन पहले तो आपको आपके सिलेबस में 2009 जो है इंडियन स्टैंडर्ड, उसको बताऊंगा। उसमें हम ये यही रिलेशन यूज करते हैं। इसकी वैल्यूज क्या कर लेते हैं वो मैं बाद में समझा दूंगा आपको। ठीक है, द के और द हिम्सवर्थ कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो के वैल्यू है के और सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें क्यूब के स्ट्रेंथ के ऊपर से मिलेगा, लेकिन ये के वैल्यू क्या लेना चाहिए? ये हिम्सवर्थ ने क्या प्रपोज किया है? वो है परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट्स अलाउड टू फॉल बिलो द मिनिमम। यानी हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल साइट पे रहने वाला है, वो क्वालिटी कंट्रोल तो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि ये परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट्स, if we allow to fall the below the target characteristic strength or the minimum, if that percentage is 0.1, then this factor k value is 3.09, and as this percentage increases, this value goes on decreasing, k value. Okay, so 3.921, these are the values given by Mr. Himsworth. ठीक है, coefficient of variation S average is equal to, coefficient of variation का formula is equal to another formula for to find out the coefficient of variation. S average is equal to S minimum 1 minus kV upon 100. Okay, again the kV is the coefficient of S average is the coefficient of variation, and all the other has got the same standard deviation, etc. All those have got the same values.
it has been suggested that standard deviation is proportional to the value of minimum strength, or in other words standard deviation by the mean strength is equal to constant. ये जो रेशो रहता है, ये जनरली ऐसा देखा है कि ये रेशो ये काय के ऊपर डिपेंड रहता है, ये मीन स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है. तो इसलिए ये रेशो जो है, ये दिस रेशो रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, नाउ फ्रेंड्स, with this knowledge we will be moving into the mixed design process as per Indian Standard 10-262 2009. Okay, today we will be trying to understand what data is to be provided, and from tomorrow and in our next lecture on the Monday we will see the remaining part. But what we have discussed up till now, regarding concrete mix design, we tried to understand the definition or the meaning of the concrete mix design. Then we tried to understand what are the various factors which affects the designing of the concrete और मिक्स डिजाइन और द कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग, तीनों वर्ड है उसको. उसके बाद में हमने देखा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीमेंट एंड वाटर पेस्ट और प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट एंड वाटर पेस्ट इन द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन. इसके ऊपर में हमने एक अच्छा दो तीन स्लाइड या 5 मिनट उसके ऊपर में दिए, और उस पर से हमने कंक्लूजन ऐसा निकाला कि for satisfying all these parameters, strength, workability and durability, the concrete or the cement water paste is of immense importance. ठीक है, it should be used as optimum as possible, not as minimum, as optimum. यानी मैक्सिमम भी नहीं, बहुत मिनिमम भी नहीं, क्योंकि ये तीनों को अफेक्ट करता है. वर्केबिलिटी को तो करता ही है, ये स्ट्रेंथ को करता है, और ये ड्यूरेबिलिटी को करता है. ठीक है, और उसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा, वो देखा स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स. अब इसका क्या यूज है ये अभी हम इसके कल के लेक्चर में देखेंगे. आज थोड़ा हम पहला पार्ट समझ लेंगे. स्टैटिस्टिकल पैरामीटर में हमने 3 पैरामीटर देखे. एक तो हमने मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते वो देखा. सेकंड हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन देखा कैसे निकालते हैं, तो यह स्टैंडर्ड डिविएशन का मीनिंग. और तीसरा देखा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाउ इट इज फाउंड आउट. ओके, these 3 things we have seen the solution of one numerical. Okay, if possible any one of you, ना आपके जो 16-17 लोग तो अच्छे सिंसियर दिख रहे हैं मुझे, यदि आपको कहीं लास्ट ईयर का पेपर मिला, लास्ट ईयर यानी ऐसे ही 2019 विंटर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो वो आप ग्रुप पे डाल दीजिए या मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप कर दीजिए. 2019 विंटर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो न्यूमेरिकल आया है वो हम ये यूनिट के आखिरी में फिर से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो मुझे लगता है यहां तक कि आपके सबके ध्यान में आ गया कि हमने कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में क्या पढ़ा. मैंने आपको बताया, फिर से 3 चीजें आपको दोहराता हूं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन्स द स्ट्रक्चर, and while designing the structure, may be building, may be bridge, may be any road, any civil engineering structure, वो स्ट्रक्चर कंक्रीट का डिजाइन करते वक्त वो स्ट्रक्चर में कंक्रीट की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या चाहिए ये वो प्रपोज करता है. सो द मिनिमम स्ट्रेंथ और द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज बीइंग प्रपोज्ड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर. ये कंक्रीट को साइट पे कौन करवा लेता है, बनवा लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, वो साइट इंजीनियर. ठीक है, इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. ये साइट इंजीनियर के हाथ में ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्राप्त करना, गेन करना ये है, और ऊपर से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना भी है. ठीक है,
अब तीसरा आ गया कंक्रीट इंजीनियर और द लेबोरेटरी इंजीनियर, कंक्रीट मिक्स डिजाइनर। इसका काम क्या है कि ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और साइट इंजीनियर के साइट के ऊपर में क्या क्वालिटी वो मेंटेन करता है ये वो समझ लेगा। एक तो साइट वाला उसको इन्फॉर्म करेगा कि मेरे साइट पे गुड क्वालिटी कंट्रोल है, बैड है, एवरेज है कि बेस्ट है, एक्सलेंट है, ये सच में वो बताएगा। और फिर उस हिसाब से ये कंक्रीट मिक्स डिजाइनर कंक्रीट को बनाएगा, और ये जो बनाएगा इसके हिसाब से फिर ये साइट इंजीनियर अपने साइट पे काम करवा लेगा। ठीक है, ये इतनी सिंपल लिंक रहती है, आपके ध्यान में आने के लिए मैंने बताया। तो अभी रोल चालू हो गया है कंक्रीट मिक्स डिजाइनर का, लेकिन ये कंक्रीट मिक्स डिजाइनर को इंफॉर्मेशन कौन देता है? वो देता है साइट इंजीनियर, क्योंकि साइट इंजीनियर इज द पर्सन हु इज हैंडलिंग द स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड हु इज हैंडलिंग द कंक्रीट मिक्स डिजाइनर। तो वो कंक्रीट मिक्स डिजाइनर को क्या डाटा उसने देना चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड ने दे दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड 10/262 2009 has given this format. Okay, this is given in the soft copy and my notes also. So I will be giving you the soft copy of this immediately after the lecture. क्या भेजता है भाई वो डाटा? ये इतना डाटा भेजता है। पहला है ग्रेड डेजिग्नेशन। ठीक है, ग्रेड डेजिग्नेशन यानी कंक्रीट का ग्रेड डेजिग्नेशन, यानी कंक्रीट M10 है, M20 है, M25 है, M30 है, कौन से ग्रेड का, या M100 है, ये ग्रेड डिजिग्नेशन वो लिखता है। वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बाद में लिखता है टाइप ऑफ सीमेंट। 33 ग्रेड का सीमेंट है, 43 का है, 53 का है, पीपीसी है, जीजीबीएस है, ओपीसी है, और बाद में कंपनी का भी नाम लिखता है, एल&टी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या केशोराम है, या और कोई लाफार्ज है, बिरला है, तो वो टाइप ऑफ सीमेंट लिखता है। वो बाद में मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट भी कौन भेजता है? ये साइट इंजीनियर, ये पूरा डाटा भेजता है। वो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ यानी MSA हमने पढ़ा था, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, वो भी वो लिखता है। बाद में मिनिमम सीमेंट कंटेंट, कम से कम कंक्रीट में कितना सीमेंट रहना चाहिए, ये भी वो देता है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, अब वो ज्यादा से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशो कितना साइट पे रहना चाहिए, ये भी वो देता है। ठीक है, कुछ भी देगा, 0.5 देगा, 0.6 देगा, उस हिसाब से ये कंक्रीट मिक्स डिजाइनर कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेगा। बाद में वो वर्केबिलिटी देता है, वर्केबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द स्लम्प। ओके, हमने देखा वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए हमने 3 मेथड देखा था। वो है स्लम्प, दूसरी है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, तीसरी है वीबी टेस्ट भी है, वीबी टेस्ट, और चौथी है फ्लोटेबल टेस्ट। तो वो किस टाइप का कंक्रीट है उसके साइट पे, उस हिसाब से यहाँ पे वर्केबिलिटी देगा। स्लम्प में होगा तो स्लम्प में देगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा तो वो देगा, यदि बहुत फ्लोएबल कंक्रीट है तो फ्लोटेबल टेस्ट का देगा, या बहुत ही हार्श कंक्रीट है जिसको स्लम्प कुछ भी नहीं है तो वो वीबी टेस्ट का भी दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर कंडीशंस, अभी मैंने आपको ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। एक्सपोजर कंडीशन एज पर, ये क्या टेबल है ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, एज पर टेबल नंबर 4 एंड टेबल 5 ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456, इस हिसाब से ये एक्सपोजर कंडीशन है। लेकिन फिर से मैं बताता हूँ, एक्सपोजर कंडीशन मैंने आपको बोला था कि ये इट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशन एंड द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी हमारे यहाँ जैसे एक्सपोजर कंडीशन 8 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक के है। दूसरा एक्सपोजर कंडीशन में रहेगा कि वो स्ट्रक्चर पानी के साथ में है या पानी के साथ में नहीं है ना। एखादा डैम है तो इट विल बी ऑलवेज एक्सपोज टू वाटर, लेकिन एखादा रोड है तो इट विल नॉट ऑलवेज बी एक्सपोज टू वाटर। तो एक्सपोजर कंडीशन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, ज्यादा से ज्यादा तापमान कंक्रीट का कितना रहेगा प्लेस करते वक्त, ये भी वो देगा। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग, ठीक है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कैसा कर रहा है, प्लेस कैसा कर रहा है। अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड,
अर्ली स्ट्रेंथ है ना 3 days 7 days यदि चाहिए तो वो भी वो यहाँ पे मेंशन करेगा। टाइप ऑफ एग्रीगेट, यानी कौन से टाइप का एग्रीगेट है, वेदर द एग्रीगेट इज ऑफ द मेड अप ऑफ द बसाल्ट, ऑफ द सैंडस्टोन, ऑफ द मार्बल, एंड ऑल्सो whether the aggregate is rounded aggregate, whether the aggregate is crushed aggregate, ये सब यहाँ पे मेंशन करेगा। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट भी करेगा, मिनिमम सीमेंट करेगा, मैक्सिमम सीमेंट करेगा, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर एन एडमिक्सचर shall or shall not be used and the type of admixture and the condition of use। एडमिक्सचर कंक्रीट में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी वो करेगा, और कौन से टाइप का एडमिक्सचर है वो भी बताएगा। और ये सब वो जब लिखेगा इसके साथ में ये सब मटेरियल भी वो लैब में भेजेगा। साइट पे जो भी मटेरियल यूज होने वाला है उसका कितना डाला मटेरियल भेजना चाहिए वो हम आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब मटेरियल भी उसको लेबोरेटरी भेजना है ना, उसके ऊपर तो कंक्रीट मिक्स डिजाइनर लेबोरेटरी में कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेगा, ठीक है। तो ये भी भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा और मटेरियल भी, टाइप ऑफ सीमेंट भेजेगा, कौन सा सीमेंट है, एग्रीगेट भेजेगा, एडमिक्सचर भी भेजेगा, और पानी यदि सरीका ही है तो पानी तो वो लेबोरेटरी में अपना दूसरा भी पोर्टेबल वाटर भी यूज कर सकता है, ठीक है। साइट पे यदि अलग पानी है तो वो पानी भी भेजेगा, और एडमिक्सचर तो जरूर भेजेगा, सभी भेजेगा, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम आज रुकते हैं, वी विल टेक द ब्रेक एंड द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस in our next lecture।